کیا تو میں پھر سب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، عبادت ہے، اس میں یہ چیز ہوتی ہے آگے ہونا، دیکھنا، ایک دوسرے کا احساس کرنا، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ بہت سی بیٹیاں بہنیں وہ بھی اس بات کا غصہ کرتی ہیں، تو جگہ کے لحاظ سے مشکل ہوتی ہے، تو ضرور ان کا خیال کیا کریں تاکہ ہم سب مل کر اپنی خدا کی عبادت کریں۔ اور پھر کافی ہم نے دیکھا لوگ غصے کی وجہ سے 3-4 ہمیں شکایتیں بھی ملی، تو میں پھر آپ سب سے درخواست کروں گا ایسا نہ کریں، کوئی بات نہیں، مل کر اور سب تاکہ مل کر عبادت کریں کی گزاریں۔ میرے خیال نکالیں خدا کے زندہ کلام میں سے پطرس رسول کا خط، پطرس رسول کے 2 خط ہیں، پہلا خط اور اس کا 5واں ہمیں پطرس نے کہا ہے۔ پطرس کا پہلا نام کیا تھا جی؟ جماعت میں سے پطرس کا پہلا نام کیا تھا؟ شمعون۔ کیا نام تھا؟ شمعون۔ بعد میں جب خدمت میں آیا تو یسوع نے کہا شمعون کیفا، تو چٹان ہے۔ اس کا مطلب چٹان یعنی مضبوط شخص ہے۔ کیوں یسوع نے پطرس کو مضبوط کہا؟ سنیں، ایک مقام پر یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے، بڑی بھیڑ جمع تھی، اور پہلی آیت سے ہم نے تلاوت سنی ہے، بیٹی نے ہمارے لیے پڑھا۔ پہلی آیت میں ہم نے کیا سنا ہے؟ تم میں جو بزرگ ہیں میں ان کی طرح بزرگ اور مسیح کے دکھوں کا گواہ۔ اپنے بارے میں پطرس کہتا ہے میں کون ہوں؟ میں بزرگ ہوں، اور جو تم میں بزرگ ہیں ان میں ان کی طرح میں بھی ایک بزرگ ہوں۔ میں یہ بیان کر رہا ہے، ایک بزرگ عمر رسیدہ ہے، پطرس بھی عمر رسیدہ نے تعلیم دیتے ہوئے کہا سنو، پہلے میری بادشاہی کی تلاش کرو اور پھر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یہ میں دوں گا، انعام میں دوں گا، جو تم نے کرنا ہے وہ یہ ہے میری بادشاہی کی تلاش کرو۔ آج کا خادم آج پوری کوشش ہے پہلے ساری چیزیں ملے بعد میں خدمت کریں، پہلے ساری چیزیں مل جائیں بعد میں خدمت کریں، مگر خدا کہتا ہے، یسوع نے فرمایا پہلے میری بادشاہ کی خوشخبری پھیلاؤ، میری بادشاہی کے بارے لوگوں کو بتاؤ کہ میں نے تمہیں بادشاہت کے لیے بلایا ہے، اور جب یہ پہلے کرو گے، دیانتداری سے کرو گے، پھر میں دیکھوں گا، پھر ساری چیزیں۔ بات کس طرح کی جا رہی ہے؟ یہ اس گھر کی پہچان ہے، اس گھر کو دیکھنا ہے، مگر آج لوگ پتہ کیا دیکھتے ہیں؟ پردے بڑے سونے نہیں ہیں، پردے بہت اچھے، بیڈ شیٹ بہت پیاری، میں ان کے گھر گئی، بیڈ شیٹ بہت اچھی، پردے بہت اچھے، گھر میں ٹیلیں لگی ہوئی تھی، گھر بہت اچھا تھا، بڑا اچھا خاندان ہے، بیٹے کا یہ دیکھتے ہیں اچھا ہے، ہم ہوا ہے، ماربل لگا ہوا ہے کے لیے جانا، اس کی اگر چھوٹی موٹی ضرورت ہے وہ مجھے پوری کرنا، اس کی مشکلوں میں اس کی مدد کرنا، یہ خادم کی ذمہ داریوں میں آتا ہے۔ آگے ہم نے پڑھا ہے اے جوانوں تم بھی بزرگوں کے تابع رہو اور ایک دوسرے کی خدمت کے لیے فروغنی سے کمر بستہ رہو۔ خدا جو اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے وہ مغرور ہیں، اور جو مغرور ہیں یعقوب کے خط میں لکھا ہے کریں، اور ساتھ میں ہمارے جو ہے وہ آسر منشا کی طرف سے جو ہر سال اور ہر مہینے ہم جو ہے وہ تمام خادموں کو ایک خوبصورت بائبل دیتے ہیں، جو کہ مقدس کلام جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور آج کے جدید جو ہے یہ 10 خدا کے پاک نام کو، وہ جو پاک نام سب ناموں سے اعلیٰ اور اس کی پاک ذات بلند و بالا ہے، ہم اپنے خدا کو
सजदा करने के लिए आए हैं, अपने खुदा की इबादत के लिए आए हैं जो बेहद इज्जत, तारीफ और सजदों के लायक है। मुबारक खुदा। इन दिनों कुछ प्रॉब्लम हुई कि जब रस ज़्यादा होता है तो हम लोगों को आगे करना पड़ता है। तो भाइयों में से काफ़ी मुश्किल हुई, बहुत सारे भाइयों ने इस पर गुस्सा किया, एतराज़ किया। तो मैं फिर सबसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, इबादत है, इसमें ये चीज़ होती है, आगे होना, देखना, एक दूसरे का एहसास करना, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। बहुत सी बेटियाँ बहनें वो भी इस बात का गुस्सा करती हैं, तो जगह के लिहाज से मुश्किल होती है। तो ज़रूर कोऑपरेट किया करें, एक दूसरे का ख्याल किया करें, ताकि हम सब मिलकर अपनी खुदा की इबादत करें। और फिर काफ़ी हमने देखा लोग गुस्से की वजह से 3-4 हमें शिकायतें भी मिली। तो मैं फिर आप सबसे दरख्वास्त करूँगा, ऐसा ना करें, कोई बात नहीं, मिलकर और सब ताकि मिलकर इबादत करें और अपने खुदा को मुबारक करें। जो लोग ऊपर बैठे हैं, आपके पास पंखा है, हवा आ रही है, ठीक है, मुश्किल तो नहीं कोई, अगर मुश्किल है तो नीचे जगह है, चलिए ठीक है, खुदा आपके साथ हो। दुआएं हम खुदा के जिंदा कलाम को सीखने वाले हों, बरकत के लिए आए हैं, और ज़िंदगी बरकत खुदा के कलाम में है। जब हम कलाम खुदा को पढ़ते, सुनते, अमल करते हैं तो लिखा है, इस किताब का पढ़ने वाला, सुनने वाला और अमल करने वाला मुबारक है। हमारा जमा होने का मकसद भी यही है, हम जो ज़मीन पर ज़िंदगी गुजारते हैं अपने खुदा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। मेरे साथ निकालें खुदा के जिंदा कलाम में से पतरस रसूल का खत। पतरस रसूल के 2 खत हैं, हम पहला खत और उसका 5वां बाब देखेंगे। रास्ते में ना बैठे, आगे आ जाए, और सनी आपकी ड्यूटी, आप वहीं खड़े हो, रास्ते में ना किसी को बैठने दे, आगे जगह है या आगे बैठाएं और आगे करें। रास्ते में जो लोग आते हैं तो उनको मुश्किल होती है, तो वहीं जरा सारे इंतज़ाम को देखें। कोई बुजुर्ग आए उसे कुर्सी दें, कोई बीमार आए उसको कुर्सी दें, और जो भाई आ रहे हैं उनको आगे करें ताकि वो आगे बैठ सकें। आगे बात एक ही बात, तलावत के लिए चाहूँगा, कोई तलावत करना चाहता है तो अपना हाथ दिखा, जो तलावत करना चाहता है। पतरस के खत में पहला बाब और उसका 5वां बाब, पहला खत 5वां बाब, पहली आयत से हम 11 आयत तक तलावत करेंगे। जो कि तलावत करना चाहता है मौका है, खड़े होके करना चाहते हैं, आगे होके करना चाहते हैं, आगे ठीक है करेंगे, तलावत करें। तुम में जो बुजुर्ग हैं, मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह और जाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी होकर उनको ये नसीहत करता हूँ कि खुदा के अल्लाह की गवाही करो जो तुम में है। लाचारी की गवाही ना करो, बल्कि खुदा की मर्जी के मुआफिक खुशी से और नाजायज नफा के लिए नहीं, बल्कि दिली शौक से। और जो लोग तुम्हारे सपूत हैं उनका हुकूमत ना जताओ, बल्कि अल्लाह के लिए नमूना बनो। और जब सरदार जलावान जाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेहरा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबिया रहो, बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोख्ती से कमर बस्ता रहो।
खुदा का शुक्र हो। हालेलुया। पंखे चला दें, ये रोड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पंखे सब चला। आए हम पूरी तवज्जो करें। आज जो तलावत हमारे लिए की गई पतरस रसूल के खत में, पहला खत पतरस रसूल का 5वां बाब और उसकी पहली आयत से 11 आयत तक तलावत की गई है। मेरा ईमान है अगर हम तवज्जो करेंगे बरकत पाएंगे, बरकत लेकर जाएंगे। और हमारा आने का मकसद यही है, हम अपने खुदा से बरकत लेकर जाएं। आमीन आमीन। आज मैं एक और दरख्वास्त करता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रहे, और जब मैं कुछ बोलने को कहूँ तो आवाज़ आनी चाहिए। ये नहीं चलो कोई और बोल देगा, एक आवाज़ से बोलना चाहिए। इससे क्या है, हम चुस्त रहते हैं, हमारी तवज्जो रहती है और फिर हम बरकत पाते हैं। तो गौर करें, ये खत जो लिखा गया, इस खत के जो मकासद हैं, जो मकसद था, उस पर हम गौर करें। पतरस ने ये जो दोनों खत लिखे, इनमें जो पतरस का मकसद है वो है खुदा पर ईमान। ईमान की तरफ उसने बड़ी तवज्जो दिलाई है। फिर उसने तवक्कुल पर, ईमान और खुदा पर तवक्कुल करना, इस पर उसने बड़ा जोर दिया है। वो आगे फरोखनी पर, यानी अपने आप को छोटा करना, इस पर बड़ा जोर दिया है। जुबान पर यानी हलीमी पर पतरस का बड़ा जोर है कि हमें हलीम बनना चाहिए। फिर हिम्मत ना हारना, ये सब सिखाया गया है। फिर मुसीबतों में खुशी करना, खुश रहना, सब्र करना, ये इन खतों में खास तौर पर सिखाया गया है। और फिर पतरस ने जो खास बातें कही, और पतरस के लिए जो यीशु मसीह ने खास बातें कही, उनको भी चंद को हम जरूर याद करेंगे। आपको याद है यीशु मसीह ने पतरस से कहा था, पतरस तो पत्थर है और मैं तुझ पर कलीसिया कायम करूँगा। फिर यीशु ने पतरस को ये भी कहा, पतरस तू मेरे बर्रे चला। पतरस ने एक आयत बड़ी जबरदस्त कही, वो ये है, पहले तुम कोई उम्मत ना थे, मगर अब खुदा की उम्मत, मुकद्दस कौम, खुदा के लोग। और ये उसने अपने खत में, पहले खत के दूसरे बाब की 10वीं आयत में पतरस ने कहा है। पतरस का पहला नाम क्या था जी? जमात में से पतरस का पहला नाम क्या था? शमाउन। क्या नाम था? शमाउन। बाद में जब खिदमत में आया तो यीशु ने कहा, शमाउन कैसा, तू पत्थर है, तू चट्टान है। इसका मतलब चट्टान यानी मजबूत शख्स है। क्यों यीशु ने पतरस को मजबूत कहा? सुने, एक मकाम पर यीशु मसीह तालीम दे रहे थे, बड़ी भीड़ जमा थी। यीशु मसीह ने तालीम देते हुए लोगों को कहा, यीशु मसीह यूहन्ना 6 बाब की तालीम दे रहे थे। लोगों को बुरी लगी कईयों को ये बात, और वहां लिखा है बहुत से लोग यीशु को छोड़कर चले गए। यीशु मसीह ने पतरस को देखा और गौर करके पतरस से कहा, पतरस तू भी जाना चाहता है तो चला जा। सुने सुने कैसी जबरदस्त बात है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, ये लोग मुझे छोड़कर चले गए, तू भी जाना चाहता है तो चला जा। पतरस ने जवाब क्या दिया? पतरस ने कहा, ऐ उस्ताद, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं?
हालेलुया, हालेलुया। बरकत के लिए आए हैं और मेरा ईमान है हम बरकत लेकर आएंगे। पतरस ने वो बुनियादी तालीम जो मसीहत की बुनियादें हैं इन पर बड़ा जोर दिया और इनकी तालीम उसने पूरी दयानतदारी से जो यीशु मसीह से सुना उसने दूसरों तक पहुंचाया। अभी जो हमने तलावत की ये पहला खाता पतरस का 5वां बाब और पहली आयत से हमने तलावत सुनी है। बेटी ने हमारे लिए पढ़ा, अब दोबारा गौर करते जाएं। पहली आयत में हमने क्या सुना है? तुम में जो बुजुर्ग हैं मैं उनकी तरह बुजुर्ग और मसीह के दुखों का गवाह। अपने बारे में पतरस कहता है मैं कौन हूं? मैं बुजुर्ग हूं और जो तुम में बुजुर्ग हैं उनमें उनकी तरह मैं भी एक बुजुर्ग हूं। यहाँ बुजुर्ग से कुछ और मैं नहीं बयान कर रहा है। एक बुजुर्ग उम्र रसीदा है, पतरस भी उम्र रसीदा कर दे कि नहीं, मगर पतरस जिस बात की तरफ इशारा कर रहा है वो सुने। मैंने पहले बताया यीशु ने कहा पतरस तू मेरे बर्रे चला। कलीसिया यीशु की क्या है? भेड़े हैं। क्या है जी? भेड़े हैं। तो बर्रे कौन है? खुदा के खादम। जिस तरह खादम चरवाहे हैं ये भेड़े चराते हैं और खादमों को भी कोई निगहबान चाहिए जो इनको इकट्ठा रखे, सिखाए और समझाए। और वो कौन है? पतरस। पतरस को यीशु ने कहा तू मेरे बर्रे चला, यानी तू मेरे खादमों को संभाल, इनकी खिदमत कर। तो पतरस क्या था? पतरस उन 3 बुजुर्गों में शामिल था जो तमाम कलीसियों पर नजर रखते, गौर करते, उनकी मुश्किलें दूर करते। अगर कोई मजहबी मसला हो, कोई तालीमी मसला हो तो उसको हल भी करते थे। ईमान की किताब में पढ़ेंगे तो एक मुश्किल आन पड़ी और पालूस ने खत लिखा पतरस को, और ये 3 बुजुर्ग थे बड़े जो कलीसिया को संभालते थे उस जमाना में। कौन कौन थे सुने? पतरस, यूहन्ना और याकूब। ये 3 बुजुर्ग थे जो इकट्ठे बैठकर फैसले करते थे और कलीसिया की निगरानी करते और खादमों को समझाते और सिखाते थे। इसलिए वो कह रहा है मैं क्या हूं? उन बुजुर्गों में एक बुजुर्ग हूं। कौन? जो सारी खिदमत को संभालते, खादमों को संभालते, उनकी देखभाल करते। आगे बढ़े। और ज़ाहिर होने वाले जलाल में शरीक भी हूं। मैं एक बुजुर्ग हूं, बुजुर्गों की तरह बुजुर्ग हूं और मैं खिदमत करता हूं। और कौन हूं? और ज़ाहिर होने वाले जलाल में भी शरीक हूं। ये पतरस का ईमान है। जलाल, ज़ाहिर होने वाले जलाल में शरीक हूं। इसका मतलब क्या है? क्या लिखा है? यीशु आसमान से ज़ाहिर होगा और वो जलाली बदन में, जलाली बादल पर आएगा और हवा में उनका इस्तेमाल करेंगे और हवा में वही इस्तेमाल करेंगे जिन्होंने उस जलाली को अपनी जिंदगी दी है और उसके लिए कोशिश की है अपनी ख्वाहिशों को खत्म करें और जलाली की खिदमत करें। हालेलुया। तो पतरस कह रहा है मैं ज़ाहिर होने वाला जलाल, यीशु आने वाला जो है उसमें कायम हूँ, उसमें शरीक हूँ। शरीक होकर उनकी ये नसीहत करता तो उनमें शरीक हूँ और उस शराकत की वजह से, बुजुर्गी की वजह से मैं तुम्हें नसीहत करता कि खुदा के उस गला की गलाबानी करो जो तुम में है। खुदा के उस गला की निगाहबानी करो जो तुम में है। अभी तक खादमों को तालीम दे रहा है। पतरस खुदा के खादमों को कह रहा है कि सुनो, मैं खुदा के जलाल का मुंतज़िर हूँ
اور میرا ایمان ہے کہ میں جلال میں پہنچوں گا، مگر تم کیا کرو، خدا کے اس گلا کی گلابانی کرو جو تم میں ہے، لاچاری سے نگہبانی نہ کرو، بلکہ خدا کی مرضی کے موافق خوشی سے اور ناجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ خادموں کیا کرو، خدمت کرنے والوں کیا کرو، خدمت، خادم، ایک ایلڈر، ایک ڈیکن یہ خادم ہے، ایک چرچ کا نظام سنبھالنے والا یہ خادم ہے، ایک چرچ کمیٹی کے ممبر خادم ہیں خدا کے، ایک ڈیکن، ایلڈر، پاسٹر، لے مین، یہ سب خادم ہے، اور آپ سب بھی خادم ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ خدا کے خادموں کو کہتے ہیں جی یہ ہمارے خادم ہیں، بائبل ایسا نہیں کہتی، یہ جملہ غلط ہے۔ جو لوگ پاسٹروں کو، نگہبانوں کو کہتے ہیں یہ ہمارے خادم ہیں، تو یہ جملہ بائبل کے مطابق نہیں، کیونکہ ہم کیا ہیں، ہم خدا کے خادم ہیں، اور آپ پر فرض ہے کہ آپ خدا کے خادموں کی خدمت کریں۔ کیا لکھا ہے، میرے خادموں کو دو چند عزت کے لائق جانا جائے اور ہر اچھی چیز میں شامل کیا جائے، اور ان کو دوسروں سے دگنی عزت دی جائے۔ یہ ابھی خادموں کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ جو خدا کا خادم نگہبان ہونے کے بعد، خادموں کا چرواہا ہونے کے بعد خادموں کو تعلیم دیتا ہے، اور آگے لکھا ہے ابھی جو ہم نے پڑھا ہے کہ نجائز نفع کے لیے نہیں بلکہ دلی شوق سے۔ جب ہم خدمت میں آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، خدمت میں قدم رکھتے ہیں، تو ایک لالچ اندر آتا ہے، مجھے کیا ملے گا، مجھے کیا ملے گا۔ تو میں نے کہا تھا اگر توجہ رکھیں گے تو برکت پائیں گے، برکت نہیں کر پائیں گے۔ جتنے لوگ خدا کی خدمت میں آتے ہیں ان کے دل میں یہ سوال آتا ہے ہمیں کیا ملے گا۔ سنیں سنیں، توجہ کریں۔ اسی پترس نے یسوع کو ایک بار تعلیم دیتے ہوئے روک کر یہ بات یسوع سے کہی۔ پترس نے یسوع سے کہا اے خدا ہم سب کچھ چھوڑ کر تیرے پیچھے آ گئے، ہمیں کیا ملے گا۔ پترس نے یسوع کو کہا ہمیں کیا ملے گا۔ یسوع نے کہا آسمان پر 100 گنا جو دنیا میں تمہارے پاس نہیں، سب سے زیادہ تمہارے پاس ہوگا، پھر خزانہ ملے گا۔ اور پھر یسوع نے کہا بڑی بات یہ ہے کہ تم میرے ساتھ تختوں پر بیٹھو گے اور تم فرشتوں کا، تم لوگوں کا انصاف کرو گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی جو لوگ خدمت میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے گا، اور اس وقت خدمت میں شروع سے ایسے ہی ہے، مگر ہم ابھی کے ہیں، ہمیں یہی نظر آئے گا ابھی ایسا ہو رہا ہے، ابھی ایسا ہو رہا ہے۔ ہر شخص جو خدمت میں آتا ہے وہ کہتا ہے سب کچھ زیادہ میرے پاس ہو اور میرے پاس ہر اچھی چیز ہو، مگر یہ سن لیں جن کے پاس ہے وہ خدمت نہیں کرتے، انہی کو سنبھالتے رہتے ہیں۔ خدا نے جن کو اپنی خدمت کے لیے بلایا، وہ نبی ہوں یا رسول، وہ رسول ہوں یا رسولوں کے شاگرد، ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیں، جن کا نام ہے، جنہوں نے عزت پائی، انہوں نے دکھ پایا، ننگے پاؤں رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، خدا کا کام کرتے رہے، اور خدا ان کا نام لے کر کہتا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں۔ خدا ان کے نام پر فخر کرتا ہے۔ جنہوں نے عیش و عشرت کو پسند کیا، لکھا ہے انہوں نے جیتے جی اپنے آپ کو موت کے حوالہ کر دیا۔ آج کا خادم، آج کی خادمہ یہ کہتے ہیں ہمیں کیا ملے گا، میں خدمت کیوں کروں، نگاہیں کہیں اور لگی ہیں خادموں کی۔ یہی خدا کا خادم کہہ رہا ہے نجائز نفع کے لالچی نہ بنو، شوق سے خدمت کرو۔ کیسے کرو جی؟
दिली शौक, यानी क्या, दिली शौक से खुदा की खिदमत, गदा की निगहबानी करो, दिली शौक से। क्यों? इसमें अजर है। तो अगर बार बार यही है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, तो फिर मिलेगा तो बहुत कुछ, क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सब कुछ नहीं मिलेगा जिसका वादा यीशु ने किया। जो दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं, कलाम में खुदा कहता है, हाँ एक चीज है, अगर आप मती कीजिए उसका 6वां भाग पढ़े तो फिर खुदा ये चीजें मिलेगा। कब? वहां लिखा है, यीशु ने कहा 28-29 साल, मती कीजिए 6वां भाग 28-29 साल को जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है, पहले तुम मेरी बादशाही की तलाश करो। यीशु ने तालीम देते हुए कहा, सुनो, पहले मेरी बादशाही की तलाश करो और फिर ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये मैं दूंगा, इनाम में दूंगा। जो तुमने करना है वो ये है, मेरी बादशाही की तलाश करो। आज का खादम, आज की खादमा, आज पूरी कोशिश है पहले सारी चीजें मिले, बाद में खिदमत करें। पहले सारी चीजें मिल जाए, बाद में खिदमत करें। मगर खुदा कहता है, यीशु ने फरमाया, पहले मेरी बादशाह की खुशखबरी फैलाओ, मेरी बादशाही के बारे लोगों को बताओ कि मैंने तुम्हें बादशाहत के लिए बुलाया है। और जब ये पहले करोगे, दयानतदारी से करोगे, फिर मैं देखूंगा, फिर सारी चीजें दूंगा। हम कहते हैं यीशु नहीं, पहले सारी चीजें दे, बादशाही की मनाही बाद भी करें। ये इंसान की कोशिश है, ये इंसान की कोशिश। यहाँ तक वो खादमों को सिखा रहा है, फिर उसने लोगों को कुछ कहना शुरू किया। मगर एक और आयत पढ़ने, 4वीं आयत, उसमें भी कुछ उसने कहा खादमों को, और जब सरदार गलाबान ज़ाहिर होगा तो तुमको जलाल का ऐसा सेवा मिलेगा जो मुरझाने का नहीं। अगर तुम मेहनत करोगे, अगर मेरी बादशाही की मुनादी करोगे, मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और हर तरह के दुख में, सुख में कायम रहोगे और लाचारी से नहीं, खुदावंद को दिखाई कि ये जरा मैं तेरी खिदमत करा, ये लाचारी है, मुझे मिलेगा क्या मैं तेरी खिदमत करूं, ये लाचारी है। शौक, दिली शौक जब इससे करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर सरदार गलाबान जब ज़ाहिर होगा। ये सरदार गलाबान कौन है? ये सरदार गलाबान यीशु मसीह है। ये जब ज़ाहिर होगा, बादलों पर आसमान से ज़ाहिर होगा, तो फिर क्या मिलेगी? उड़ने की कुव्वत मिलेगी, रूहानी कुव्वत मिलेगी, रूहानी ताकत मिलेगी उनको जिन्होंने लाचारी से कलाम नहीं सुना, लाचारी से खिदमत नहीं की। मुझे क्या मिलेगा, मैं खिदमत करूंगा तो क्या करूं मिलेगा, मेरे बच्चे हैं, फलां है, यानी कि नाजायज नफा। जो तुम्हारा हक नहीं वो ना लो, जो तुम्हारा हक नहीं वो ना लो, मेहनत करो और जो तुम्हें मिले उस पर गुजारा करो। लूका की इंजील 17 बाब 16 बाब जब आप पढ़ेंगे, यीशु मसीह ने 70 शागिर्दों को खिदमत के लिए भेजा और कहा, ना बटवा लेना, ना लाठी लेके जाना। लाठी इसलिए लेते थे ताकि रास्ते में कोई जंगल जानवर आए तो उससे बचने के लिए। एक थैली होती थी, आप बटवे हैं, उस वक्त थैली होती थी जो अंदर बांधते थे, उसमें रुपए पैसे होते थे। फिर 2-2, 3-3 कपड़े लेकर जाते थे साथ। यीशु ने जब अपने शागिर्दों को भेजा, बोला ना कपड़े लेना, ना थैली लेना, कोई पैसा नहीं था लेके जाना, और ना कपड़े लेना 4-4 सूट, और ना लाठी लेना। जानवरों से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। और चलते चलते मुनादी करना, बीमारों को अच्छा करना, लंगड़े चले, बदरूहे निकले, ऐसा ही हुआ। और जब आप
लूका की इंजील 17 बाब 10वीं आयत पढ़ेंगे, लिखा है वो 70 खुश होकर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद यीशु, तेरे नाम से बदरूहें हमारे ताबिया है। यीशु ने कहा, सिर्फ यही खुशी नहीं, तुम्हारे लिए बड़ी खुशी बाकी है। आसमान पर तुम्हारे नाम लिखे गए हैं और इब्लीस शिकस्त खा चुका है तुम्हारी वजह। ये यीशु ने कहा। फिर यीशु ने पूछा, बताओ मुझे, जब बगैर पैसे के गए तो मुश्किल हुई? उन्होंने कहा, नहीं, लोगों ने हमारी सारी जरूरतों को पूरा किया। फिर यीशु ने कहा, खाने की तो मुश्किल हुई, अच्छे खाने लोगों ने दिए, कपड़ा, बहुत हर चीज का लोगों ने ख्याल किया, तो वो खुश थे। आज का खादम ये कहता है, मुझे क्या मिलेगा, मैं खिदमत क्यों करूं, मेहनत नहीं करनी, मेहनत के बगैर मुझे मिले। सारा दिन घर में बैठा रहूं, ना मैं कहीं दुआ के लिए जाऊं, ना किसी के लिए कोशिश करूं, और सब कुछ मेरे पास हो। और ये है लाचारी की खिदमत, ये है नाउमीदी की खिदमत, और ये खुदा पसंद नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए यीशु ने कहा, मेरी तुमसे कभी बात नहीं सुना। तुम्हारा जमीन, तुम्हारा ईमान पैसा है। तो यहाँ तक खुदा के खादमों के लिए पतरस रसूल बोल रहा है। 5वीं आयत है, वो कलीसिया से कलाम करता है। अब कलीसिया की बारी है, सुने गौर से। लिखा है, ऐ जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबिया रहो, बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मजलूमों का मुकाबला करता है, मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। ऐ जवानों, ऐ जवान बेटियों, ऐ जवान बेटों, एक वो जवान जिनके घर में बुजुर्ग हैं, बेशक वो 40, 45, 50 साल के हैं, मगर उनके बुजुर्ग भी घर में बाकी। और एक घर का सलीका, एक खानदान का तरीका इसी से पहचाना जाता है। किसी खानदान में आप जाएं और बुजुर्ग जो घर का है उसकी हैसियत क्या है, उसकी इज्जत क्या है, उसे बुलाया किस तरह जा रहा है, उससे बात किस तरह की जा रही है, ये उस घर की पहचान है, उस घर को देखना है। मगर आज लोग पता क्या देखते हैं, पर्दे बड़े सोने नहीं, पर्दे बहुत अच्छे, बेडशीट बहुत प्यारी, मैं उनके घर गई, बेडशीट बहुत अच्छी, पर्दे बहुत अच्छे, घर में टैलें लगी हुई थी, घर बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा खानदान है। और जब बेटी का रिश्ता करने जाए, बेटे का ये देखते हैं, अच्छा है, रंग हुआ है, मार्बल लगा हुआ है, वॉशरूम पहले लगी, ये देखते हैं। खुदा मना करता है, खुदा मना करता है। इसी वजह से आज घर बर्बाद है, बहुत सारे खानदान बर्बादी में जा रहे हैं। खानदानी जिंदगी तो सत्यानाश हो गया। ये तो नई जिंदगी है ना, ये नई नस्ल की। हर दौर में, पहले मैं कह रहा हूँ हर दौर में ऐसा होता है, मगर हम इस दौर के हम तो अब रोएंगे ना कि अब तो सत्यानाश हो गया। ये लव मैरिज, ये अरेंज मैरिज, सब बर्बादी की तरफ था। आपको पता है तलाक कहाँ पहुँच गई है? मेरी तैयारी हो रही है एक मैसेज पर, तलाक पे मैं मैसेज दूंगा, उसमें ये सारी चीज़ें बयान करूँ। मगर यहाँ मैं बात करता हूँ, ऐ जवानों, अपने बुजुर्गों के ताबिया रहो, सबके सब फरोतनी से खिदमत करो, कमर बस्ता रहो। खुदा बुजुर्गों का मुकाबला करता है। जो अपने माँ बाप को तमीज से नहीं बुलाता, जो छोटी बहन भाई अपने बड़े बहन भाइयों को तमीज से नहीं बुलाते, इसी से तो पता चलता है घर का तरीका क्या है। एक बात याद रखिए, जिस घर में बुजुर्गों की इज्जत नहीं ना, उस घर में खुदा की कोई इज्जत नहीं है। खुदा की इज्जत की पहचान ये है, जो शख्स अपने बड़ों को इज्जत देता है वो खुदा को भी इज्जत देता है, और जो अपने बड़ों को इज्जत नहीं देता वो खुदा को भी कोई इज्जत नहीं देता। वो क्या है? मगरूर है।
वो तुंद मजाज है, वो ज़बान का सख्त है। आपको मालूम है बाइबल कहती है नरम ज़बान सख्त हड्डी को तोड़ देती है। इसका मतलब है जो लोग तुंद मजाज हैं, जो लोग सख्त हैं, अगर किसी नरम मजाज पे, नरम ज़बान वाले से वास्ता पड़े, वो ठोकर खाते हैं। यार मैं तो बहुत ही खराब था, इसने तो 2-4 बातों में मुझे जीत लिया, वो तो बहन की बातें ही बड़ी अच्छी, वो भाई की बातें ही बड़ी अच्छी, उसने तो एक बात में मुझे शर्मिंदा किया क्योंकि मैं ठीक नहीं बोल रहा था बोलने। तो जो ये मजाज है, नरम मजाजी है, जो हलीमी है, ऊपर हमने पढ़ा है पौलुस कहते हैं खादमों को हलीम बनो। फिर मुझे दोबारा वहाँ जाना पड़ा, एक बात याद आ गई खादमों के बारे में। सुने, हमारे पास एक पास्टर आता था, मैं नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं, तो 4 बार मैंने उसे मौका दिया कलाम का। वो जब भी खड़ा होता था ना, कलीसिया की वो करता था ना जिसको वो कहते बेइज्जत करता था और बहुत तुंद मजाज सब। और जब तक यहाँ खड़ा रहता था ना, अंजराजा में नाम ही नहीं खोलता। और अपनी जिंदगी जब मैंने उसकी जिंदगी के बारे में जाना, मुझे बड़ा दुख हुआ। खाली खुदा से खाली मैंने मना कर दिया। फिर एक दिन फोन आया, पास्टर साहब मैं कराची आया हुआ। मैं क्या टाइम नहीं जो होगा मैं जरूर कर सकूँगा। 2 बार 3 बार फोन किया, मैंने कहा टाइम नहीं। क्यों? आज बहुत सारे लोग सिर्फ रोक डालने के लिए आते हैं, दूसरों को बेइज्जत करने के लिए आते हैं। कलीसिया खुदा ने खादमों को जिम्मेदारी दी है, हलीमी से, प्यार से, तरीके से सिखाओ, समझाओ। ये नहीं हर वक्त डांटना, हर वक्त डांटना। तो मैं अपने किसी अजीज दोस्त को समझा रहा था, मैंने कहा लोग जब आते हैं ना कलीसिया के लोग, तो कलीसिया में लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम, अपनी अपनी मुश्किलें, अपने अपने दुख, बीमारियां ये लेकर लोग आए होते हैं। ऊपर से उनको बेइज्जत करो, वो जाते हैं तो बातें करते जाते, आए जाना की ला चले। तो आदमी पता नहीं तो बीमा लड़के आया है, करेगा ले आया, आज तेरे हम बहन नहीं देता। ये खिदमत नहीं है, ये खिदमत नहीं है। खिदमत फिक्र करने का नाम है। और फिर यहाँ सिर्फ कलाम सुनाना ही नहीं, जब मुझे पता है मेरा फलां शख्स फलां बहन मुझे ये बताया, उसके लिए दुआ करने के लिए जाना, उसकी अगर छोटी मोटी ज़रूरत है वो मुझे पूरी करना, उसकी मुश्किलों में उसकी मदद करना, ये खादम की जिम्मेदारियों में आता है। आगे हमने पढ़ा है ऐ जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबिया रहो और एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोखनी से कमर बस्ता रहो। खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, जो अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते वो मगरूर हैं, और जो मगरूर हैं यकूब के खत में लिखा है अबलीस मगरूरों का, खुदा जो है वो अबलीस का, उसकी रूहों का, मगरूरों का मुकाबला करता है। तो हमने मगरूर नहीं बनना, हमने नरम मजाज बनना है, बर्दाश्त करने वाला बनना है और एक दूसरे की भी बर्दाश्त करना है। अभी आगे बढ़े, अगली बात है खुदा का खादम क्या है। अब ईमान की तरफ वो लेके आ रहा है। पहले उसने खादमों से बात की, फिर उसने लोगों से बात की, अब वो तीसरी बात जो कर रहा है वो ये कह रहा है बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोखनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया, हालेलुया। फिर कहूँगा वो बहनें, वो भाई, वो लोग जो बीमारी में हैं, जो मुश्किल में हैं, जो मैं पहले कह रहा था, लोग आते हैं बरकत के लिए, लोग आते हैं शिफा के लिए, लोग आते हैं खुदा को जानने के लिए, लोग आते हैं खुदा के रहम को देखने के लिए। वो ये है तो पतरस कह रहा है मेरी बहनों, मेरी बेटी, मेरे बेटों, बुजुर्गों, सुनो सबके साथ क्या करो, खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोखनी करो।
ہم کبھی کبھی خدا کے ہاتھ کے نیچے سے بھاگتے ہیں، ایک کو شفا نہیں ملی کہیں اور لے لیں، وہاں سے نہیں ملی کہیں اور لے لیں۔ یاد رکھیں ایک دعائی اس وقت اثر کرتی ہے جب اوپر سے خدا کا حکم ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ دعائی پر بھروسہ کرتے ہیں، روپے پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایک شخص کی مجھے بات یاد آ رہی ہے، اب عمر اتنی ہے، تجربے ہیں، لوگوں کی سنی ہے باتیں۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی کی، ایک آواز آئی، پہلی آواز آئی کھانا کھول دو، دوسری آواز آئی دعا کرا لیں گے، دعا کرا لو۔ مالک جی، گھر کے مالک، بیٹی کے باپ کی آواز آئی، کیوں دعا کدے بھی کرانی ہے کہ روٹی نہ کھول گئے اور 2 دے کا بعد ڈالو۔ سوچ سکتے ہو یہ بات؟ ہم میں سے کوئی نہیں سوچ سکتا، کبھی ایسی بات کہہ نہیں سکتے۔ میں نے سنی ہے یہ بات۔ ایسے لوگ جو بیماری میں اپنے روپے پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں، جو اپنے کاموں میں اپنے روپے پیسے پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے لیے خدا کا کلام کہتا ہے خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے آ جاؤ، فروتنی سے آؤ، ادھر ادھر نہیں۔ میں نے کچھ خاندانوں کو جانتا ہوں، کہا وہ بیٹی امید پہ ہے اور اسے وہ ہاسپٹل لے کے جانا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں پاسٹر صاحب پہلے آپ آئیں، دعا کریں، ہم پھر اسپتال جائیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی، یہ طریقہ ہے۔ آپ ہاسپٹل جا رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کی بچی بیمار ہے، کوئی بیٹا، کوئی ماں، کوئی گھر کا کوئی فرد، جانے سے پہلے دعا کرو۔ اے خدا ہم ایمان رکھتے ہیں، ڈاکٹر تیرے ہاتھ میں، اچھا ڈاکٹر اس وقت ملے گا جب تو حکم دے گا۔ اگر دنیا کی مثال دوں تو سنو، افلاطون ایک عظیم حکیم ہوا ہے قدیم زمانے میں، اور اس کا دعویٰ تھا میری دعائی کام کرتی ہے۔ وہ غرور کرتا تھا، وہ تکبر کرتا تھا اپنے علم پر، اپنی دعائیوں پر۔ خدا نے اسے سکھانے کے لیے کام کیا۔ اس کا ایک نوجوان دیکھا بیمار ہو گیا، بڑی دعائیں دی، بڑی کوشش کی، ایک دن ایسا ہوا وہ بیٹا مر گیا۔ اسے بہت غصہ آیا، معمولی سی بیماری میں میرا بیٹا مر گیا۔ اس نے اپنی دعائیاں، اپنی کتابیں سب لی، ملازموں کو لیا کہ سب سمندر میں آج پھینک دوں گا۔ میں اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکتا۔ جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص ملا جو خدا کا فرشتہ انسان بن کر آیا تھا۔ اس نے پوچھا، جناب حکیم صاحب کہاں جا رہے ہیں؟ میں بس جا رہا ہوں۔ جی مجھے بتائیں کہ سمندر پہ جا رہا، کیوں؟ یہ دوائیاں پھینکنے کے لیے، یہ کتابیں علم پھینکنے کے لیے۔ بولا کیوں؟ میرا بیٹا جوان مر گیا، میری دوائیاں بچے کو نہیں بچا سکتی، میری کس کام کی یہ ساری خدمت؟ سنو فرشتے نے کیا کہا، فرشتے نے مٹھی کھولی، کہا یہ وہ دوائیاں ہیں جو تم نے دی تھی؟ بولا ہاں یہی ہے۔ تیرے پاس کیسے آ گئی؟ بولا میں نے اندر نہیں جانے دی، میں نے یہ دوائی اس کے اندر نہیں جانے دی، مجھے خدا نے حکم دیا تھا، میں خدا کا فرشتہ ہوں۔ تیری دوائی میں شک نہیں، پر تیرے غرور میں خدا کو شک ہے۔ تیرا غرور خدا کو پسند نہیں آیا، تو ہمیشہ اپنی دوائی پر فخر کرتا ہے، تو دوائی عقل دینے والے پر فخر نہیں کیا، تو نے خدا پر فخر نہیں کیا، اس لیے خدا نے تجھے سکھایا ہے۔ پھر وہ رویا، پھر اس نے منتیں کی، اے خدا مجھے معاف کر دو۔ اور بہت سے لوگ ہیں، اور کئی بار ہم سنتے ہیں لوگوں کے منہ سے ایسی باتیں، میں اچھے ہاسپٹل میں داخل کرواؤں گا، میں اچھے جگہ پہ علاج کرواؤں گا، میں قیمتی دوائیاں لے کے آؤں گا، ابھی ٹھیک ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جس نے بھی کبھی ایسا سوچا ہے اس نے خدا سے ڈانٹ کھائی ہے، مار کھائی۔ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، وہ تمہیں وقت پائے سر بلند کرے گا، اپنی فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ اس کو پتہ ہے میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو پتہ ہے میری بیٹی بیمار ہے، اس کو پتہ ہے گھر میں مشکل ہے، اس کو پتہ ہے حالات کیسے ہیں۔ حاضری سے کہو
खुदा मेरा ईमान है दवाई तेरी जात के बगैर काम नहीं करेगी और वसीले तू ही बनाता। फिर देखिए खुदा कैसे बड़े काम करेगा, कहें हालेलुया, जलाल के लिए, खुदा के जलाल के लिए काम करें। ठीक है जी, गौर करने फिर छठी आयत हमने पढ़ी थी, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे रोकनी करो, वो तुम्हें वक्त पर सरबलंद करेगा। अपनी सारी फिक्रें उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी, खुदा हमारी फिक्र करता है। खुदा मेरी फिक्र, हर कोई कहे खुदा मेरी फिक्र करता है, उसको मेरी फिक्र है। हाँ ये जरूर है, घर में लड़ाई होती है ना, अम्मा तो मेरी फिक्र नहीं और कुछ का ख्याल है, मेरा कोई ख्याल नहीं। मगर याद रखो खुदा को आपकी फिक्र है, खुदा आपकी फिक्र करता है। आगे चले, आदमी आए गौर से तवज्जो करें, तुम होशियार और बेदार हो रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है कि किसको हार डाले, किसको नुकसान दे। जब सोचते हो ना तो गौर से सोचो, होशियार होकर सोचो। ये सोच इब्लीस की तो नहीं। इब्लीस कैसे काम करता है, वो सोचों में आता है, वो सोच में बिगाड़ पैदा करता है और वो हमारी जुबान से खुदा के खिलाफ बातें निकल आता है। यही तो कह रहा है खुदा का हाल, होशियार हो, बेदार। बेदार का मतलब तवज्जो रखो, इब्लीस हमें वर्ग ना लगाए। वो क्या कहता है, याद रखो, जब मुश्किल में होते हैं, घर में माली हालात खराब होते हैं, जब बीमारी होती है, जब औलाद बीमार हो, मैंने देखा है सारी मुश्किलें एक तरफ, औलाद बेटे की बीमारी मुश्किल एक तरफ, ये देखी नहीं जाती और मैंने लोगों को बड़े बड़े गलत काम करते हुए। मगर यहाँ खुदा का कलाम यही कह रहा है, इब्लीस हमारे पास आ जाता है जब हम मुश्किलों में होते हैं, तो वो क्या सुनना चाहता है। सुनिए ये बात बड़ी खास है, जब हम मुश्किल में होते हैं, घर के हालात खराब होते हैं, इब्लीस पास आता है, इंतजार करता है, आम काम बन गया, अब आवाज आएगी खुदा ने मुझे छोड़ दिया, खुदा भुल गया, अभी तो खुदा की याद ही नहीं। वो फलां, वो फलानी, वो फलां बंदा, वो फलां बहन, वो फलां भाई, ना उन्हें कभी दुआ की थी, ना वो कभी चर्च गई, वो बावजूद वो बच्चे भी ठीक, वो घर भी ठीक, वो नौकरी भी चंगी बनी, अभी सब कुछ कर रहे हैं, वो बावजूद सारा कुछ भी ठीक नहीं। इससे कौन खुश, खुदा खुश होता है, इससे इब्लीस खुश होता है और वो खुदा की तरफ मुंह करके हंसता है। ये बाइबल में लिखी है बात को मैं कह रहा हूँ, ज़बूर 37 में लिखा है। फिर सैमुएल नबी की किताब में जब नातन नबी दाऊद से बात करता है, दाऊद ने गुनाह किया तो खुदा ने कहा, नातन नबी ने दाऊद को बताया खुदा नाराज है और उसने तेरे लिए सजा रखी है क्योंकि तूने खुदा के दुश्मन को कुफर बकने का मौका दिया। जब हम दुनिया में गुनाह करते हैं ना, खुदा के खिलाफ बोलते हैं, नाउमीद हो जाते हैं, नाउमीदी की बातें करते हैं, इब्लीस खुदा की तरफ हंसते देख कर हंसता और कहता है ये तेरी बेटी, ये तेरा बेटा, ये तेरी बंदी, ये तेरा बंदा। तो इसलिए दाऊद नबी क्या कहता है, ज़बूर 37 में कहता है वो वक्त आता है खुदा उस पर हंसेगा, किस पर, इब्लीस पर। कब, जब हम कहेंगे दुख हो या सुख। खुदा ने ये मुश्किल कुछ भी नहीं, ये मुसीबत कुछ भी नहीं, मेरा ईमान है तू मेरे साथ है और तू सब कुछ दूर करेगा। फिर खुदा उस पर हंसता है, फिर इब्लीस शर्मिंदा होता है, मुंह लपेट कर चला जाता है, उसके मुंह पर तमाचा लगता है। हालेलुया, हालेलुया। सुने, पतरस
तो खुदावंद यीशु ने खिदमत की और पतरस ये कलाम कर रहा है। इस वक्त जुबान मेरी है और ये कलाम किसका है? पतरस का। और पतरस को किसने दिया? यीशु ने। और यीशु को किसने दिया? उसके बाद खुदा ने। हालेलुया। तो हमने पढ़ा है कि यहाँ लिखा है खुदा के कलाम में, होशियार हो, बेदार हो, तुम्हारा मुखालिफ अबली गर्जने वाले शेरे बब्बर की तरह दहाड़ता फिरता है। क्या करे? तुमको फाड़ डाले। तुम ईमान में मजबूत होकर और ये जानकर उसका मुकाबला करो कि तुम्हारे भाई दुनिया में हैं और इस ऐसे ही दुख उठा रहे हैं। अगर तुम ईमानदार बुज़दिल हो जाओगे, अगर तुम यीशु को जानने वाले, खुदा के कलाम को जानने वाले बुज़दिल हो जाओगे ना, तो तुम अकेले ये बात नहीं करोगे, 10 और लोग सुनेंगे, फिर वो भी यही बात करेंगे। तो इसलिए होशियार बनो, मुंह से ऐसी बात ना निकालो ताकि दूसरों के लिए मुसीबत का बात न बने। एक बात और देख के आगे, हम गुनाह करते हैं तो कहते खैर है मैं ही किया। हम मुंह से बुरी बात निकालते, कहते खैर है मैं ही की। बहुत सारे लोग कहते खैर है तेनू क्या रहा। सुने, पतरस यही बात कह रहा है, जब हम दलेरी से गुनाह करते हैं, बुरी बात मुंह से निकालते हैं, सुनने वाले को दलेरी होती है, वो भी हंसा ही करता है। तो यही पतरस कह रहा है, दुनिया में और लोग भी हैं, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी तरफ देखकर वो भी ऐसा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है, फ्रेब न खाओ, बुरी सोबत अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। तो फ्रेब न खाओ, अच्छी सोबत बुरी आदतों को अच्छा कर देती है। आगे आगे बड़े जल्दी से, वक्त बहुत कम है और बातें कुछ ज्यादा है, वरना मैं शॉर्ट करता चलूँ। 10वीं आयत, अब खुदा हर तरह से फजल का चश्मा है जिसने तुमको मसीह और अपनी अबदी जलाल के लिए बुलाया है। तुम्हारी थोड़ी मुद्दत तक दुख उठाने के बाद आप ही तुमको कामल, कायम और मजबूत करेगा। हालेलुया। ये आप सबके लिए जरूरी है। गौर करो, बहुत थोड़ा वक्त बाकी है, यीशु आने वाला है और वो अपनी जलाल में दाखिल करेगा। वो तुम्हें बरकत देगा, वो तुम्हें संभाल लेगा, अबदी मकानों में सरफराज करेगा और जो कायम रहेंगे वो बरकत पाएंगे, वो निजात पाएंगे, वो सरफराज किए जाएंगे। खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोखनी से रहो, वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करेगा। अब्दुल्लाह उसी की सल्तनत रहे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बरकत पाई है तो फिर हाथ लगा के खुद नारा मारो, जिम्मेदारी मारो। हालेलुया। जी आए अपने सरों हम झुकाएं। इस तरबियत के लिए, नसीहत के लिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करें। बाप ने हमें अपनी औलाद जान कर तरबियत की है और हमने इस कलाम से, ईमान से अपनी ज़िंदगी में रख लिया है। सब को झुकाएं, कलाम खुदा के लिए हम शुक्रगुजारी की दुआ करें। हमारे दरमियान खुदा के खादिम पास्टर बिलाल मुबारक हैं, उनके साथ मिलकर खुदा उनके खादिम के लिए, कलाम खुदा के लिए हम खुदा का शुक्रिया गुजार लाएंगे। जी पास्टर बिलाल। खुदाए ज़ुजलाल, आसमान और ज़मीन के बनाने वाले रब, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी ताज़ीम करते हैं तेरे बड़े ही रहम, तेरे फजल के लिए जो आज शुद्ध ए खुदावंद खुदा इस ए खुदावंद दिन में अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से तूने हम पर किया। और ए खुदावंद खुदा गैसमनी की कलीसिया पर तूने अपने फजल को अपने मुकद्दस कलाम के वसीला से अयान किया।
ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کے بیٹے ہمارے آقا خداوند یسوع مسیح ناصری کے لیے جس کے تفعیل ہماری رسائی ہماری مدرسی ہے۔ اے خداوند خدا آج پہر ہم تیرے پاک روح کو اے خدا خاندانوں کے لیے گھرانوں کے لیے اور بالخصوص تیرے منصوب کے لیے ساری ٹیم کے لیے ورشپ ٹیم کے لیے ہم تیری مہما کو تیری برکت کو چاہتے ہیں۔ اے خدا آسمان کے دریچوں کو کھول کر اصل نو یہ برکت دے خداوند ہر پل ہر دم یہ تیرے نام کی تعریف کرتے رہے اپنے منصوب کو اور گہرے میں لے چل اور گہرے مکاشفات سے اے خداوند خدا روشناس کرتا رہے اور بہت سارے گھرانوں نوجوان بیٹوں کے لیے اے ہم راہ مشق بن سکیں اور اے ہم تیری خدمت کے قدر و تدریس کے عمل کو جاری اور انکساری رکھ سکیں۔ اے خداوند خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے 30 نہیں 60 نہیں بلکہ پورا کا پورا 100 گنا پھل آنے والے ٹھہرے ان کی زندگیوں میں اے خدا ہر روز تیرا کلام ان کی زندگیوں میں چھڑ پکڑے اور اے خدا ان کے بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں یسوع کے جلالی اور بابرکت نام کے وسیلہ سے آمین۔ مسیح یسوع میں میرے خاندان اور ہمارے کراچی ڈائسس کی طرف سے آپ کو بہت بہت سلام پہنچے۔ میرے پاس گسملی چرچ کی کلیسیا کے لیے ایک بڑی خوبصورت گڈ نیوز ہے۔ جیسا کہ 2024 جب اس کا آغاز ہوا تو بہت سارے معلمین نے اس بات کا اعتراف کیا کہ 2024 جو ہے وہ ہماری کلیسیا کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے لیے باعث برکت ہے اور وہ کہ جنوری سے لے کر نومبر تک خدا نے انتھک بے شبہ ہمارے ملک پاکستان میں ایونٹ اور بہت سارے کروسٹ اور بہت سارے سیمینار خدا کے خادموں نے مرتب کیے جس کے وسیلہ سے کلیسیا پاکستان نے بیداری کو حاصل کیا اور جو دن گزر رہے ہیں ویسے ہی خدا کے خادم جو ہیں وہ ایسے پروگرام لے کر آتے ہیں کلیسیا کے لیے تاکہ کلیسیا بیدار اور چل و چوکس رہے جیسا کہ آج کے اس ورد میں سے آپ نے اخذ کیا ہے کہ خدا کے منصور نے کیا بتایا کہ ابلیس سے ہمیں کیا ہے کہ بچنا ہے ہوشیار رہنا ہے بیدار رہنا ہے تو بیدار رہنے کا مفید ذریعہ یہ ہے کہ مقدس کلام کے ساتھ جڑے رہیں اور اس لیے جب آپ اس کے ساتھ جڑے رہتے ہیں خدا کے خادموں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں تو پھر خدا آپ کو ملٹی پلائی کرتا ہے ابلیس کو موقع نہیں آنے دیتا کہ وہ آپ کو ٹچ کر سکے آپ کے قریب آ سکے ہاللیلویا۔ میں وہ گڈ نیوز بتانا چاہوں گا کہ کل منڈے ہے اور شائن اسٹار ٹیلی ویژن کے پلیٹ فارم سے ہم جو ہے وہ آرٹ کونسل میں ایک پروگرام ہمیں سیمینار 300 لوگوں پر مرتب کیا ہے جو کہ بہت پاورفل اور بہت زیادہ زبردست پروگرام ہے جو کہ خدا کے خادم ڈیسمنڈ ہیری جو ہے وہ امریکہ سے آ رہے ہیں اور جب بھی وہ سال میں ایک مرتبہ آتے ہیں تو وہ کلیسیا پاکستان کے لیے جو ہے وہ بہت سارے خوبصورت ہے وہ انعامات لے کر آتے ہیں خوبصورت چیزیں لے کر آتے ہیں جو بالخصوص جو ہے مقدس شہر یروشلم سے بلانگ کرتی ہیں وہ چیزیں اور اس لیے وہ جب آتے ہیں تو وہ تمام کلیسیا پاکستان کے لیے بالخصوص کراچی شہر کے لیے اور لاہور شہر کے لیے ان کے لیے لے کر آتے ہیں اور آپ کے بھی کل شام 6 بجے موقع فراہم ہوگا کہ آپ آرٹ کونسل میں آ کر وہاں پر اپنی برکات کو رسیو کریں اور ساتھ میں ہمارے جو ہے وہ پاسٹر آشر منشا کی طرف سے جو ہر سال اور ہر مہینے ہم جو ہے وہ تمام خادموں کو ایک خوبصورت بائبل دیتے ہیں جو کہ مقدس کلام جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور آج کے جدید دور میں تقریباً یہ 10-12 سال سے میں اس کی خدمت کر رہا ہوں اور کراچی سے آزاد کشمیر تک جو ہے وہ میں پورا بیگ بھر کر لے کر جاتے ہیں تاکہ مسیح کلیسیا کے لوگوں کو آڈیو بائبل دی جائے تو وہ آڈیو بائبل کچھ جو ہے وہ اس طرح کی شیپ میں ہے کہ وہ اس طرح کی ہے اور یہ جب پیک ہوتی ہے اس میں ہینڈ بھی آپ کو فری ملتی ہے اور اس کے بعد ڈیٹا کیبل فری ملتی ہے اور پلس کے اس میں جو ہے یہ سن لائٹ پر چارج ہوتی ہے اور یہ خاص طور پر اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ پنجابی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے جس زبان میں بھی ہم سے توقع کریں گے اس زبان میں آپ کو ملے گی اور یہ ہر مہینے میں
में हमारे पास ये 100 आती हैं, जो कि हम हर एक चर्चिस में 10 से 15 खादिम को देखते हैं, ताकि वो अपनी कलीसिया के उन बहन भाइयों को, उन बहनों को दें जो अनपढ़ हैं, जो मुकद्दस कलाम को सुन नहीं सकते, उससे जो है इसे सुनकर जो है वो बरकत पा सकें। ये इसके बटन दिए गए हैं, ऑन दिया गया है, प्लस के इसमें जो है इसमें कार्ड भी दिया गया है कि आप इसमें कार्ड भी डाल के आप आवाज़ सुन सकते हैं और आप गीत के जरिए से जो है वो बरकत को हासिल कर सकते हैं। और फिर पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक ये पूरी आयत बाई आयत है और चैप्टर बाई चैप्टर है। जहाँ पर भी आपने जिस आयत को ढूंढना है, ये बटन दिए गए हैं, आगे पीछे करने, जैसे हम बाइबल ब्रदर्स को आगे पीछे करके हम हवाले जात ढूंढते हैं, वैसे ही ये ऑडियो बाइबल आज के जदीद दौर में आई है। अगले साल में उन्होंने ऐसा पहल किया है कि वो LCD की तरह जो है उसमें जो है वो चैप्टर नजर आए, ताकि खुदावंद आपको इसके वसीला से बरकत दे। इसका कोई हदिया वगैरह नहीं लेते, अगर आप लोगों को चाहिए हो या वैसे भी हमने मोहल्ले में दी हैं, अगर किसी और को भी चाहिए तो ज़रूर बताएं। मैं ऑन करके बताता हूँ जी, आपको ज़्यादा मिलेगी ताकि आप कलीसिया में दे सकें। ये आप इसमें चार्ज की मैं बैग से निकाल